Done. So once again, formally, good afternoon, everyone. The recording has not been started yet. So all those who are live, welcome and thank you for taking your time out. All those who will be looking to this on YouTube, thanks to you as well. If you are someone who is like speaking from YouTube perspective, if you are someone who is just jumped down to this video, जो आप directly इस video पे आए हो, it's highly recommended आप fifth session की video पहले देख लो, so you will have better, uh, you will be at ease to connect the dots from now onwards. Because further down the sessions, couple of जो 3-4 sessions आएंगे, it's not purely Wyckoff, basically it is, but Wyckoff has a major connection with supply and demand concept. Like where the Wyckoff schematic works into the consolidation, वो एक major part है consolidation का, supply and demand का, जहाँ पे supplies बनती है, जहाँ पे demand बनती है. So एक बहुत जिन लोगों को बहुत vague idea भी होगा Wyckoff के बारे में, they must be knowing that we find Wyckoff generally in a phase of consolidations, where for usual audience they see that this is form of a consolidation, as I can broadly say, this is a form of consolidation. But for Wyckoffin people, what will they look for is कि इस में हो क्या रहा है, whether it is like accumulating, whether it is distributing, whether it is reaccumulating, whether it is redistributing, what exactly is happening is the reason. So it's not just a random. Again in trading, in this charts, everything happens at a POI. Like everything, what if it is has to make sense, it has to happen at a certain place, right? रैंडम प्लेस पे रैंडम चीजें होती है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है. So even if the Wyckoff schematic is building up, we need to make sure that it has to happen at some certain space, right? And that some certain space, especially for Wyckoff, is a consolidation, is a place where the demand and supply has been built or is building. या तो पुराने डिमांड सप्लाई पे बिल्ट वापस आएगा प्लेस तब होगा, या फिर उस जेन्युइनली उस करंट कंसिडरेशन जो करंट डिमांड या सप्लाई बन रही है कंसोलिडेशन में उस पर हो रहा होगा, राइट? तो दैट इज फर्स्ट वन. दैट इज वाई इट इज नेसेसरी. जो पुराना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था विच वॉज, जो आपके सामने है, बहुत क्विकली रिमाइंड करा देता हूँ उस चीज को. what it is a consolidation, generic consolidation. What we look forward, we call this as a balanced price area, because in this particular range price, it is neither like, I can hear anything using it for the first time. You can't hear anything use it for the first time. Will not look for yourself. I'm not sure that how this has to be solved, because everyone else is just fine with it. Chalo, great. Try like basic IT concept, plug in and plug out, reset the system, so that would help, I guess. Anyway, what we call this as a basic balanced price area, BPA, balanced price area, where the price is just consolidating, and we have from the retail's perspective. आज मैंने आपको एक चीज बोली कि अपना SMC का दिमाग साइड में रख के आना है ना. Right now we'll not be talking about liquidity hunt, break of structure, change of character, any of those part, ranges, current trading ranges, POIs, nothing of that sort we will be talking about. कंप्लीटली पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है चीजों को देखने का. आई एम जस्ट गिविंग यू फर्स्ट. मैं आपको कर क्या रहा हूं, मैंने आपको अभी तक 3-4 सेशंस में एसएमसी की आंखों से चार्ट्स को दिखाया है. अब मैं आपको कंसोलिडेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट्स को दिखाऊंगा, जो कि मैंने पिछले सेशन में भी आपको दिखाया था, 5th सेशन में भी. एंड फर्दर जो नेक्स्ट 3-4-5 सेशन होंगे, आई विल बी जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स हियर एंड देयर. सो 3-4 मिसलेनियस सेशंस लेकर के, इट इज like sci-fi movie, suspense movie, 4-5 सेशंस अलग अलग, bits of this, bits of that, and at the end, last 2 sessions I'll be connecting the dots so that you can have the whole picture in front of you. So अब जो आप चार्ट को देख रहे हो, not looking for like this is a liquidity hunt, this is a break of structure. Nah, this is a consolidation. Look everything from a box perspective, right? So that's one thing I want to be great, right? Then what we look for is, once we have a price of consolidation, we wait for its breakout, a generic genuine breakout, normal retail breakout. And after it, what we look forward is the area in usually the average of the area. मतलब the point is, अगर यहाँ पे सारी प्राइस ने accumulations किया है, काफी सारे liquidity hunt लिए हैं, नीचे ऊपर, and eventually the price का जो intention था upside था, वो upside गया. What we wait for is to price to roll back to it, and from the average of this area we'll look forward कि price वहां से हमें reaction देगा. Now how to find that average area? Basic general mathematics हमें average area बोलती है, that is in center part of it, which is usually in most and the many of the cases, but the shortest and the quickest tip and trick to find it, यहाँ पर हम उस balanced
ओरिजिन डिमांड, व्हाट वी कॉल इट, जो मैं बॉक्स यहाँ बनाऊंगा ओरिजिन डिमांड, जहां से हम रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, उसको बनाने का ढूंढने का तरीका इजिएस्ट, जो एसएमसी 1 of 1 है, 101 of एसएमसी, लास्ट डाउन कैंडल बिफोर द अप कैंडल, द लास्ट डाउन मूव बिफोर द अप मूव, वी फाइंड दैट एज अवर ओरिजिन डिमांड। यूजुअली बीच में मिलेगा, बट कोई रूल बुक नहीं है, कोई थ्योरेटिकल रूल ऐसा नहीं कहता। इट कैन बी डाउन बिलो, इट कैन बी अप बिलो, इट कैन बी एट द टॉप मोस्ट प्लेस एज वेल। Generic principle, SMC 1 of 1, last candle down move before the up move in case of demand, in case of, and obviously just opposite in case of supply. Okay, and ये concept मैं बार बार हर बार 10 बार clear कर चुका हूं कि when I say last candle or engulfing setup, it is not just one candle, it's couple of candle, it's just a time frame concept। एक घंटे पे time frame पे हम हैं, so this is the entire down move for me and this is the entire up move for me, right? So this is what we have to we will be obviously knowing about it। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो आपको पता होगा कि this is what I mean when I say engulfing and when I say overlapping of it, right? So that's what about the concept of, I call this as BPA, balanced price area, I call this as OD, origin demand। सिंपली इसको उल्टा कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, चार्ट को रिवर्ट किया, इन्वर्ट किया है। इफ दिस वाज एन कंसोलिडेशन एंड price broke down, not breakout but broke down, I'll see this as balanced price range, this the last up move before the down move, I'll call this as OS, origin supply। and what I expect from OS and OD areas, that price will eventually give me the reaction। अगर return back retrace होके price यहाँ पर आता है, I'll be looking for shorts here। अगर प्राइस रिट्रेस करके यहाँ नीचे आता है, I'll be looking for longs here। चार्ट वही मैंने सिर्फ इन्वर्ट करके आपको बताया, did nothing else। ओके गाइस, सो ये एक बहुत क्विकेस्ट शॉर्टेस्ट 5 मिनट की समरी थी पिछले वाले सेशंस की। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसमें इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, एसएल हंटिंग, बिग मनी इन्वॉल्व, वो सब डिटेल में आपको पिछले सेशन में मिल जाएगा, द 5th सेशन। नाउ कमिंग टू द वाइकॉफ पार्ट, एंड बिफोर वाइकॉफ देयर इज ऑल्सो वन कॉन्सेप्ट जो रिसेंटली अपने ग्रुप में बहुत चर्चित हो रहा था, सो आई थॉट कि मैं उसके डॉट्स भी कुछ कनेक्ट कर दूं, विच इज वीसीपी, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। सो वाइकॉफ्स का बिल्डअप जो स्टार्ट होता है वो यूजुअल वीसीपी के साथ ही होता है। सो आई टेल यू अबाउट द प्राइसेस एंड आई टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर्स, आई टेल यू अबाउट द ड्रॉइंग्स, हाउ थिंग्स आर, बट देयर इज अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑफ हाउ वीसीपी कम्स एंड वेयर वीसीपी कम्स। यूजुअली वीसीपी दो जगह पे मिलता है आपको, एक डिमांड्स पे, एक सप्लाई पे। डिमांड पे रिएक्शन देने के लिए, सप्लाई पे फर्दर सप्लाई को ब्रेक करने के लिए। बट जो डिमांड वाले सप्लाईज पे, सॉरी, जब डिमांड पे आपको वीसीपीज मिलते हैं विच हैज अ गुड कनेक्शन विद वाइकॉफ एस्टैब्लिशमेंट एज वेल। सो आज मैं थोड़ा मोर इंक्लाइंड वहां पर हूं और बिट्स ऑफ पार्ट एंड पार्शल ऑफ वाइकॉफ को टच करूंगा। दैट्स व्हाई दिस सेशन 1 ऑफ वाइकॉफ, देयर विल बी कंटिन्यूएशन सेशंस अहेड एज वेल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, सबसे पहले बहुत बेसिक्स ड्राइंग की, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, शुरुआत के 5-10 मिनट हम ड्राइंग से बात कर लेते हैं, देन इवेंचुअली वी विल लीड टू द चार्ट्स। ओके, starting with what is the current concept for us is, this is BPA, balanced price area, within that we have an OD, what we assume is that there is a rough range of price here, right? Finally the price breaks out, we are looking for price to come back। once the price comes back, we went to LTF, अभी तक SMC के हिसाब से we went to LTF। in LTF we look for liquidity and break of structures, and this is where we start to look for our trades। नॉर्मल अभी तक यही करते हैं, यही हमारी नॉलेज है, राइट? दिस पार्ट ऑफ द कैंडल, द ब्लैक वन, इज इन LTF। if this was in my HTF, let's say 15 minutes, this is my LTF in 1 minute। so again wait for liquidity hunt, break of structure, retracement back and look for a trade। now the first reaction will always come, or in, can't say always in trading में always का use नहीं हो सकता, most of the time this first reaction will come and you can obviously always use this reaction to scalp up your trades। ये बहुत बार, कई बार होगा आपके साथ। जब ओडी ओएस पे प्राइस आता है तो एक बाउंस तो मैक्सिमम सिचुएशन में, और मोस्ट 90% सिचुएशन में आपको देता ही देता है, और अगर आपने इसको HTF और LTF को पकड़ लिया, आप आराम से इस ट्रेड को पुल ऑफ कर सकते हो आगे, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी इशू। ये बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। बट देन इफ दिस एंटायर मूव इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर स्कीमेटिक, ये आपने 15 मिनट्स पे और 1 मिनट पे कैच कर लिया, बट लेट अस सपोज जो एक्चुअल स्टोरी चल रही है, सी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग इज द टाइम फ्रेम, कि हम किस टाइम फ्रेम पे स्टोरी को समझ रहे हैं और एक्चुअल स्टोरी किस टाइम फ्रेम पे चल रही है।
सपोजिटली हमारा नजरिया 15 मिनट्स के हिसाब से चल रहा है, दैट वी नो दैट दिस इज हैपनिंग एट 15 मिनट्स and this is I caught it in 1 minute time frame. But what if the entire picture, bigger picture of accumulation, the entire picture of making this demand has to run on 1H or has to run on 4H or has to run on 1 day? In that sense, obviously the price will definitely come down back again. Possibility to hunt your SL and then again do something like this. Because all of this, आपको ये first reaction तो मिल गया, but since the things were to work on a bigger time frame, it's not necessarily that the first reaction will work and the price will go up again. Because the concept of big money needs the accumulation. It's not just that कि वो एक ही बार में 100 crores यहाँ पे pass out हो गया and I went upside. No. For me to buy 100 crore, I need the sellers of 100 crore. For sellers to come here, they need the inducement. They need to find the setup कि हाँ यहाँ sell setup मुझे मिल रहा है, right? That is the concept we need to know. And इसीलिए आपको यहाँ पे breakdowns बहुत तरीके के मिलेंगे, आपको यहाँ patterns बहुत तरीके के मिलेंगे. The last day, yes, Anjani, the recording is on. Yes, I'll just make sure once again. Yes, it's been recorded. It's been 10 minutes. It's been recorded. Thank you. So, कहाँ था? हाँ, I guess yesterday only or day before yesterday we were discussing and Priyanka sent that BNF chart and showed that मैंने वो wedge pattern और triangle pattern अब flag pattern बना के दिया आपको. ये advanced Wyckoff में आएगा. See, very frankly, advanced Wyckoff में आपको बताऊंगा कि कैसे हर एक Wyckoff की schematic एक pattern ही है. It's nothing else. It's nothing else but just a pattern only. जो लोग Wyckoff जानते हैं already, चाहे वो फर्स्ट लेवल ऑफ स्कीमेटिक हो, चाहे वो सेकंड लेवल ऑफ स्कीमेटिक हो, सेकंड लेवल विच मींस एक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, हर एक के अंदर पैटर्न फॉर्मेशन होते हैं. सो दिस इज गोना कम इन Wyckoff's third or fourth session. After 2 more sessions, I'll tell you about it as well. Coming back to right now, what we need to understand, if it is the picture is happening on the HTF level, this is bound to happen. This SL hunt is bound to happen, right? After this happens, the first thing we want here, the first thing, always play this trade. No issues. The first time it hunts here, go to LTF, find your scalps to your internal liquidity hunt. This is external liquidity. This are the internal. Find the internal liquidity hunt. Leave it at the next supply. Scalp it, come out. But if it turns it back, think about the bigger picture now. कि अब वो चीजें 1 मिनट में नहीं चल रही है. Look for 5 minutes, 15 minutes, 1 hour or 4 hour. Things are running on the better. Once we understand that things are running on the HTF level, what are the things we have to do? First thing, wait. पहली चीज जो करनी है, उस चार्ट को भूल जाना है. 2 घंटे बाद आके देखना है क्या हो रहा है, या 2 दिन बाद आके देखना है क्या हो रहा है. Because things takes times for VCP, things takes time for Wyckoff. And all of this VCP and Wyckoff, I can say trading is fractal in nature. Whatever is happening on daily is happening on 15 seconds. Obviously, I know that. But effectively, all of these concepts are of HTF. जैसे मैंने कुछ दिन पहले मैसेज किया था, FVG is an HTF concept. उसको रिफाइनमेंट की जरूरत नहीं करनी पड़ती है. आपको रिफाइनमेंट में मिल जाएगा, बट दैट इज नॉट समथिंग हाउ यू अप्रोच इन FVG. VCPs आपको 1 मिनट पे भी दिखेंगे, बट अगर ब्रॉडर 15 मिनट्स पे VCP दिख रहा है तो लेट दैट बिल्ड अप, बिकॉज उसके रिएक्शंस उतने ही इक्विवेलेंटली इंपल्स और वायलेंट होंगे. ओके, सो अभी तक द पॉइंट नंबर 1, यू विल गोना ट्रेड दिस. ये ट्रेड आपने लिया, अगली सप्लाई पे इंटरनल लिक्विडिटी हंट किया, अगली सप्लाई पे ट्रेड को ड्रॉप कर दिया, हैप्पी. इट कैन गो फार अवे, दैट इज फाइन, बट दिस इज द वन दैट यू हैव डन विद इट. अगर ये हंट हो गया, माय माइंडसेट इज नाउ टुवर्ड्स एन HTF कि जिस टाइम फ्रेम पे मैं काम कर रहा हूं, दैट्स नॉट गोना वर्क एंड समथिंग गुड इज हैपनिंग ऑन द HTF. व्हाट गुड इज हैपनिंग ऑन द HTF, क्या हो रहा है, उस पे आते हैं. So, people who have no idea, people who have basic idea, people who are already way advanced in Wyckoff, सबके लिए एक ही लैंग्वेज है. Generic SND concept, drop, base, drop. Generic SND concept, drop, some sort of either profit booking, some sort of basic generic consolidation and a drop again. That is the first sign I look that a Wyckoff accumulation may be starting. Wyckoff बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मुझे 5-6 सेशंस लगेंगे समझाने में.
आपको समझने में भी उतना वक्त लगेगा, वाइकॉफ को बनने में भी उतना वक्त लगता है। ये सिर्फ फर्स्ट साइन है, दिस इज जस्ट 5% वेयर आई थिंक वाइकॉफ कैन हैपन। अब इस 5% को मैं 10% पे कैसे लेके आऊं, दैट वेदर इट इज वाइकॉफ और नॉट, just check whether this base drop is ending on a balanced area or an OD. If this exhaustion is ending on an OD, we call this as an exhaustive mode. I'll come to the charts, guys. मैंने 15-20 charts prepare कर रखे हैं, don't worry about it, मजा आएगा. But if it is ending on an OD, your 5% now turns to 10, 12, 15%, that Wyckoff must be happening, or I may look for Wyckoff schematic buildups. I'm not gonna teach you this drop based drop, rally based rally, लाखों करोड़ों यूट्यूब वीडियोस हैं. आई गेस मोस्ट ऑफ द सब लोगों को लगभग पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई भी 5-10 मिनट की वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा जनरिक एसएनडी कॉन्सेप्ट. ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप 5% Wyckoff can happen. Drop base drop landing on an OD 15% Wyckoff can happen. Can happen, हर बार can and may, ट्रेडिंग में कभी भी मस्ट वाली भाषा यूज नहीं होती है, ठीक है. नाउ व्हाट आई लुक फॉर इज सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, और दूसरी चीज माइंड से ये भी निकाल दो कि ये प्रीलिमिनरी सप्लाई, बाइंग क्लाइमैक्स, ऑटोमेटिक रैली, इतने सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज ही हैं. कुछ ना कुछ तो शब्द देना ही था ना, ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, कुछ ना कुछ तो नाम देना ही था ना, सो सिर्फ नाम ही है. सो ये फोबिया लोगों माइंड से निकाल दो, बिकॉज मैंने अभी तक पर्सनली पिछले कुछ दिनों में जितने लोगों से बात की है, जनरली भी सबको होता है कि Wyckoff इज ट्रोमैटिक, Wyckoff इज स्कैरी, Wyckoff समझ नहीं आता, बिकॉज वो माइंडसेट है कि इसमें टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सेटअप है. बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन के माइंड से समझना, बिग मनी के माइंड से समझना, वही लॉजिक अपनाना. लिक्विडिटी हंट क्यों होती है? फॉर बायर्स आई नीड द सेलर्स, फॉर सेलर्स आई नीड द बायर. वही कॉन्सेप्ट Wyckoff करता है, accumulation डिस्ट्रीब्यूशन करता है. इसीलिए Wyckoff के अंदर पैटर्न बिल्डअप होते हैं, बिकॉज पैटर्न इज ऑल अबाउट इंड्यूसिंग, और हिंदी में बोले तो बनाना, समथिंग बनाना, हम नॉर्मल रिटेल लोगों को, राइट. फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, I'm the terminology I'm using here is exhaustion, कि ये जो डाउन मूव है ये इंपल्सिव डाउन मूव होगा और यहां एग्जॉस्ट हो जाएगा, थक के खत्म हो जाएगा. नाउ प्राइस विल ईदर डू, द प्राइस विल ईदर मूव अराउंड हेयर और डू सम रिएक्शंस, एनीथिंग, एंड विच इज व्हाई आई एम सेइंग ये पहला रिएक्शन तो हम कैच कर ही लेंगे एटीएफ पे जाकर के, बट वो वापस आ रहा है, ऊपर जा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है. द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई नीड टू नो कि ये अगर ओडी पे लैंड कर गया एंड विथ एग्जॉस्शन, विच मीन्स 3-4-5 बड़ी बड़ी कैंडल बन के थक गई, प्राइस खत्म, डेड यहां पर आ गई है, आई एम एट ए 15% स्टेज, Wyckoff इज हैपनिंग. नाउ गाइस, यहां पर प्राइस आने के बाद दो चीजें होती है, बहुत आराम से, बहुत ठंडे दिमाग से समझना. Once price comes here, there are two possibilities. Possibility number one, the entire genuine Wyckoff schematic will start to build up. The entire genuine Wyckoff schematic will start to build up. Else, VCP will start to build up. Else, the VCP will start to build up. Volatility contraction pattern. Next 5 minutes. Again, assuming बहुत लोगों को पता है, नहीं पता होगा, वीडियोस मिल जाएंगे, और नहीं भी है तो जितना 5 मिनट बताना हूं उतना जानना ही बहुत है. वीसीपी क्या है? वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, कि वंस प्राइस में कुछ ऐसा सा बता रहा हूं, मोस्ट वॉलेटाइल प्राइस, लाइक यू नो, डेड ड्रॉप, देन सम कंसोलिडेशन, डेड ड्रॉप, मोस्ट वॉलेटाइल. शब्द क्या है? वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन. नाउ द प्राइस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, द वॉलेटिलिटी इज कॉन्ट्रैक्टिंग. Now I have a relatively less volatile, this space, this downfall. This is the first downfall,
more violent. Second downfall, relatively less violent. Third downfall, even relatively less violent. ये downfall, right? Volatility contract हो रही है, volatility contract हो रही है, volatility contract हो रही है. इंस्टीट्यूशन की भाषा में समझाऊं तो ट्रांसफर ऑफ मनी हो रहा है. पैसा अगर मैं 500 करोड़ लेके यहां पहुंचा था, if at this point I wanted to start giving 500 crores in the system for price to go up, eventually under all of these places my 500 crore ended and then the price will burst up. The price will then burst up and बहुत रिटेल कॉन्सेप्ट, जो लास्ट डाउन मूव वाला कैंडल है ना, इसके ऊपर आपका ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट फॉर्मेट के साथ प्राइस चला जाता है. ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड द प्राइस बूम्स टू बी अप. दिस एंटायर, ये बड़ी सुंदर सी ड्राइंग वीसीपी की आप सब लोगों ने देखी होगी. द फर्स्ट कर्व, द सेकेंड कर्व एंड द थर्ड कर्व. The third curve, the high of it, breakout, retest, and up. Not always a retest, but yeah, most and many of the cases, breakout, retest, and up. This is where the Mark Minervini concept, this is where, but a great बंदे का नाम सुना होगा आपने, Mark Minervini. This is where he places his limit orders. Okay, as a breakout happens, just place the order, swing below the stop losses, and the price will fly up. ये फॉर्मेशन आपको यहां बिल्टअप होता हुआ दिखेगा. अगेन लाइक आई सेड, एवरीथिंग हैज टू हैपन ऑन सम सर्टेन प्लेसेस, ओनली देन इट मेक सेंस. वीसीपी की प्राइमरली दो ही जगह होती है, वीसीपी दो ही जगह बिल्डअप होता है. या तो उस डिमांड पे होगा, ओरिजिन डिमांड पे हो रहा होगा, या फिर वीसीपी आपके ऑल टाइम हाइस पे या सप्लाई ब्रेकिंग की प्लेस पे भी होता है. विच मीन्स we are already having some sort of, let's say this is the supply, right ना, ये सब कुछ हो रहा है, and we have, let's say this supply, this could be all time high or at least a major supply I can say, and this is where is the another place where the VCP starts to build. Okay, that's the another place VCP starts to build. दो places है, either it will happen on demand or at a supply. अगर डिमांड पे हो रहा है, पर्पस दोनों का एक ही है, अपसाइड मूव लेके जाने के लिए. सप्लाई पे होता है तो सप्लाई को ब्रेक करने के लिए होता है. जिन लोगों ने रिटेल मेथड पढ़े होंगे, हम सबने रिटेल मेथड पढ़े हैं, बहुत कॉमन नॉलेज है हम सबके पास में कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट्स फेल एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट्स हैव मोर पॉसिबिलिटी टू ब्रेक, मतलब टू सक्सीड बेसिकली. और उस सब में हम ये पढ़ते थे, हमने पढ़ा है कि if the breakout, the price is developing some time, is spending some time here, it is very much likely the breakout will succeed. And if the price directly break out, it has more possibility of turning it as a fake out and coming back. यही पॉइंट्स हम यहाँ वाइकॉफ के स्कीमेटिक में कंसिडर करेंगे कि ये भी होता है, कब होता है फेक आउट, और ये जेन्युइन ब्रेकआउट्स कब होते हैं. फर्स्ट, सबसे पहले, सो फार सो गुड नॉलेज, वीसीपीस की दो जगह हमने देखी है, राइट, इधर ए डिमांड और. फिलहाल एज ऑफ नाउ जो हम बात करें वीसीपी की, इन कनेक्शन टू वाइकॉफ हम डिमांड वाले वीसीपी की बात करें, हम सप्लाई ब्रेकिंग वीसीपी की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, इट शुड बी क्लियर. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज डिमांड ब्रेकिंग, डिमांड वीसीपी एंड नॉट द सप्लाई ब्रेकिंग वीसीपी. वापस आते हैं. BPA, balance price area, OD, origin demand, drop, base, drop, exhaustion. Now I'm looking for a VCP setup. अब आराम से सुनना, कब VCP कब वाइक ऑफ. मैंने आपको दो चीजें बताई, या तो ये जेन्युइनली वाइक ऑफ बनाने लगेगा या फिर VCP बनाने लगेगा. या तो ये जेन्युइनली वाइक ऑफ बनाने लगेगा या VCP बनाने लगेगा. अगर
प्राइस यहां से रिट्रेस ऊपर होती है एंड इट गोज टू सम पर्टिकुलर लेवल, सम एक्सटेंशन लेवल, इसको हम प्ले ऑफ कर रहे हैं एलटीएफ में एसएमसी की नॉलेज से, इस स्कैल्प को हम प्ले आउट कर रहे हैं. इट गोज टू सम लेवल, spend some time, again do some consolidations, comes back to this place. If and only if you can mark some sort of levels here with multiple resistance, एक से दो से तीन रेजिस्टेंस के सेटअप आपको मिल जाते हैं यहां पर, that becomes another level of Wyckoff. And this level is like this, मतलब and zone of क्या है resistance, a zone of resistance what you have to mark where you can see multiple touches onto some sort of level, not precisely to be a line, it will precisely be a line, आप देखेंगे आगे जाकर के, what you have to make sure that it is touching some sort of levels and coming back. As soon as you find this point, this is another level of a Wyckoff and the price pulls down here. The first level is the low of this. The second level is the high of this resistance. This becomes your range. A normal S&D range, supply demand range, कि जब प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है looking for short, जब प्राइस नीचे आ रहा है looking for longs. Wyckoff की टेक्निकल भाषा में हम लोग इस लेवल को ड्रॉप बेस ड्रॉप, जो बेस है, जो कंसोलिडेशन है या प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा रिट्रेसमेंट भी आपको मिल जाएगा, उस लेवल को प्रिलिमिनरी सप्लाई बोलते हैं. व्हाट वी कॉल इट एज पीएस लेवल, प्रिलिमिनरी सप्लाई. नॉर्मल सप्लाई है ऑब्वियसली, ड्रॉप बेस ड्रॉप्स, नीचे गिर रहा है, सब सॉर्ट ऑफ सपोर्ट ले रहा है, फिर से गिर रहा है, अगर सपोर्ट था, सपोर्ट टर्निंग टू सप्लाई ऑन द ब्रेकडाउन, नॉर्मल सप्लाई है. अब वो पी आगे लगाओ, प्रीलिमिनरी लगाओ, प्राइमरी लगाओ, कुछ भी लगाओ, ड्रॉप बेस ड्रॉप, प्रीलिमिनरी सप्लाई. जहां पर एग्जॉशन आ जाता है उसका, इफ इट इज लैंडिंग ऑन ओडी नाउ, जहां पर उसका एग्जॉशन आ जाता है, वी कॉल इट एज एन एससी, सेलिंग क्लाइमैक्स, कि यहां होके हमारी हद हो गई है, आई एम डन विद दिस सप्लाई. क्लाइमैक्स, मूवीज में क्लाइमैक्स कब आता है? एंड में आता है. सो सिंपल, द प्राइस वेंट डाउन, ड्रॉप डाउन, आई हैव द सेलिंग क्लाइमैक्स, सेलिंग का क्लाइमैक्स खत्म यहां पर. व्हाट आई हैव द फर्स्ट पुश, ये फर्स्ट पुश आना ही आना है अगेन मोस्ट ऑफ द केसेस में, बिकॉज मैं ओडी पे लैंड किया हूं, जिसको हम एलटीएफ पे एसएमसी के नॉलेज से बाय कर रहे हैं, स्कैल्प आउट कर रहे हैं, उसको एक लेवल पे आना ही आना है. जिस लेवल पे जाके ये रुकता है और ये मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलते हैं, उसका तीसरा नाम हमारा AR, ऑटोमेटिक रैली. क्यों नाम दिया गया ऑटोमेटिक रैली इसका? वाई वी गेव इट अ नेम ऑफ ऑटोमेटिक रैली? बिकॉज अगेन अलाउड नहीं है कहना ट्रेडिंग में होगा ही होगा, लेकिन मोस्ट एंड द मेनी ऑफ द केसेस में होता ही होता है, इसलिए आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि इसको आराम से ट्रेड करना. बिकॉज नाउ व्हेन आई एम लैंडिंग ऑन द ओडी, एटलीस्ट वो जो पुराना पैसा पड़ा है वो एक बाउंस तो उसको देगा ही देगा. हो सकता है ओडी फेल भी हो जाए, बट एक बाउंस तो फेलियर के पहले भी देगा. हेंस दिस इज एन ऑटोमेटिक रैली फॉर मी. एंड आफ्टर द ऑटोमेटिक रैली व्हेन इट कम्स बैक, दिस बिकम्स माय एसटी. फिलहाल इस एसटी को भी छोड़ दो आप, फिलहाल इस पॉइंट को, अब ये यहां खत्म हो रहा है, यहां रुक रहा है, यहां रुक रहा है, फिलहाल हमें मतलब नहीं है. जो लोग Wyckoff बहुत एडवांस लेवल पे भी जानते हैं उनको पता होगा, जो बेसिक्स पे जानते हैं उनको बता दो, जिनको नहीं पता उनको बता ही रहा हूं. Wyckoff नॉट नेसेसरली कंप्लीट इट्स स्कीमेटिक ऑलवेज. ये जरूरी नहीं होता है कि Wyckoff बनना स्टार्ट हुआ तो वो खत्म होगा ही होगा. कई केसेस में Wyckoff स्कीमेटिक बीच में ही ब्रेक हो जाती है. ये एडवांस Wyckoff लेवल का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक्यूमुलेशन चल रहा है, वो पुश आउट हुई प्राइस ऊपर जाके ऊपर री एक्यूमुलेशन होगा, दैट इज डिफरेंट केस. मैं ये कह रहा हूं कि ये SC/ST के बाद भी Wyckoff स्कीमेटिक ब्रेक हो जाएगा एंड प्राइस माइट डू समथिंग एल्स और डू समथिंग एल्स इन डाउन प्राइस. फिलहाल एज ऑफ नाउ दिस इज योर पार्ट टू लर्न. एज ऑफ नाउ दिस इज योर पार्ट टू लर्न. सेकेंड, इसी ओडी पे कंटिन्यू करते हैं. इफ माई price is coming relatively dead down,
विदाउट एनी बेस, ऐसे किसी बेस के साथ ये नहीं आ रहा है। मतलब ये जो प्रिलिमिनरी सप्लाई आप ढूंढ पा रहे थे, या कोई रिट्रेसमेंट ढूंढ पा रहे थे, या कोई प्रॉफिट बुकिंग आप ढूंढ पा रहे थे, नाम कुछ भी दे दो, वो चीज आपको इतनी यहां नहीं मिलती है। और ये सीधा जहां डम डाउन करता है, दिस हैज अ हायर चांस ऑफ बिल्डिंग वीसीपी। This sort of price action has now a higher chance of building VCP. So first, if it is drop based drop landing on an OD, I am assuming I'm looking for a Wyckoff schematic. If it is a direct dead drop on some OD, again ये मूव भी ऑटोमेटिक रैली का हायर मतलब एंगल्फिंग टाइप का ही मूव होगा, पावरफुल मूव होगा, इसको तो हमें अभी भी ट्रेड करना है। बट इफ आई can't find some sort of support, I'm assuming now my intention is now shifted towards VCP, that it might be possibly giving me an VCP now. वीसीपी वालों को भी बता दूं कि वीसीपी भी दो टाइप के होते हैं, मतलब सॉरी दो टाइप से इन द सेंस, दो तो हमने डिस्कस कर लिया कि डिमांड पे हो रहा है, सप्लाई पे हो रहा है। बट जो ये जो आर्क हम बनाते हैं ना, ये भी एक बैलेंस्ड आर्क होता है, एक प्रोग्रेशन आर्क होता है। मैं अननेसेसरी इतना टेक्निकल टर्म में जाना नहीं चाह रहा हूं, बट ठीक है। एक वीसीपी आपका बनता जो आप ऐसे मार्क करते हो, बैलेंस्ड वीसीपी। एक वीसीपी आपका बनता है प्रोग्रेसिव वीसीपी, सॉर्ट ऑफ हायर हायर स्ट्रक्चर्स पर। आई गेस बेसिक सा डिफरेंस समझ आ रहा होगा, बैलेंस्ड वीसीपी, प्रोग्रेसिव वीसीपी। ठीक है, फिलहाल इतना समझना है, दो टाइप के वीसीपी। अब ऊपर चलते हैं। पहली चीज लिखता जाता हूं टर्मिनोलॉजी ताकि क्लियर रहे हमें। बीपीए, this is OD, origin demand. Drop, base, drop. My mind says it can be Wyckoff. Drop and rise. My mind says it can be VCP. This VCP, चलो ठीक है समय से बताता हूं कौन से केस में कौन सा वीसीपी होगा, ये भी बताऊंगा कि इन विच केस यू विल फाइंड दिस वीसीपी, इन विच केस यू विल फाइंड दिस प्रोग्रेसिव वीसीपी। दोनों थोड़ी देर या नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताता हूं। फिलहाल के लिए इतना समझ आ रहा है, जस्ट राइट डाउन ऑन द कमेंट्स और थोड़ी बातें कर लेते हैं। इतनी पिक्चर अभी क्लियर हो गई है। आई हैव 20-30 चार्ट्स फॉर यू गाइस, वो सब मैं आपको मैंने मार्क भी कर रखे हैं, लाइव भी मार्क करके बताऊंगा। कोई भी अभी तक डाउट क्वेरी कुछ भी हो तो मुझे बताओ। सब साफ है, सब क्लियर है? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत ठंडे दिमाग से आराम से समझना, बहुत सारे सेशंस लेके समझना, बहुत सारी प्रैक्टिस करके समझना। थोड़ा सा चीजों को पॉइंट दर पॉइंट क्लियर कर देता हूं मैं। आंखें बंद कर लो सब लोग, सिर्फ सुनना है, देखना कुछ नहीं है चार्ट पे, सिर्फ जस्ट लिसन। पॉइंट नंबर 1, Wyckoff or VCP is relatively a concept of HTF. I can say that the price is fractal in nature. मैं 15 सेकंड पे भी Wyckoff VCP ढूंढ सकता हूं, बट जनरली ये कॉन्सेप्ट HTF के लिए बने हुए हैं। When I say there is an Wyckoff, when I say there is an VCP, I need to know, I need to ensure that I have patience. मैं अजम्पशन नहीं कर सकता हूं इसके अंदर, मैं मुझे चीजों को बनने देना होगा। आई हैव टू वेट सो दैट द स्कीमेटिक कैन वर्क, आई हैव टू वेट सो दैट द कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कैन वर्क। Second, my session 5th knowledge of generic supply and demand inclusive of SMC says that there is a balanced price range where there is an up and down move where the price is accumulating, then the price breaks out, then the price comes back, it is an OD, origin demand. So first thing first, I had to look for into the chart is a balanced price range and an OD. BPA को हटा देते हैं, OD की बात करते हैं, मैंने OD मार्क कर लिया है। Now, if the price is approaching to this OD with a drop based drop schematic, अगर वो drop retracement drop के साथ वो पहुंच रही है उस प्राइस पर, तो I am assuming that
आई मे फाइंड, मे कैपिटल लेटर्स में MAY, मुझे शायद वाइकॉफ मिल सकता है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, मिल सकता है। अगर प्राइस रिलेटिवली डायरेक्ट ड्रॉप कर रही है मेरे ओडी पे, तो माय माइंड सेज इट मे कैन बी एन वीसीपी, ये शायद एक वीसीपी फॉर्मेशन हो सकता है। लेफ्ट साइड पे आते हैं फिर से, अगर वो वाइक ऑफ है तो मुझे पहला स्कैल्प, चाहे अब मुझे फर्क नहीं पड़ता भाड़ में जाए वो प्राइस कैसे भी आया हो, ओडी से पहला रिएक्शन में एसएमसी के थ्रू ट्रेड कर लूंगा, नॉर्मल एलटीएफ पे जाकर के स्विच ऑन टू एलटीएफ। ये प्राइस कहां तक जाएगी, एक ऑटोमेटिक रैली बनेगी। क्यों ऑटोमेटिक रैली बनेगी, क्योंकि ओडी है, मतलब पैसा पड़ा है, वो पुश करेगा ही करेगा, अगर उसको फेल भी होना है तो भी करेगा ही करेगा, राइट। सो टिल एआर लेवल, ये एआर कहां बनेगा अभी मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। ऑल्सो एक बहुत मिसकंसेप्शन, चार्ट देख लो अगर आंख बंद कर रखी है तो, जनरली ड्राइंग्स में हम हमेशा ये एआर यहां बना देते हैं, बट इसका और पीएस का कोई कनेक्शन नहीं होता है। दिस इज नथिंग कि पीएस के लेवल पर ही एआर बनेगा, एआर उससे कई नीचे, एआर उसके कई ऊपर बन सकता है। देर इज नो कनेक्शन इन पीएस एंड एआर की प्रिलिमिनरी सप्लाई और ऑटोमेटिक रैली का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है कि उसके आसपास ही बने, उसके नीचे बने, उसके ऊपर बने, उसके पास बने, अप एंड डाउन कहीं बने, वी डोंट केयर। तो ये ड्राइंग बनने में दिखने में ऐसी लगती है बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक रैली में कंफर्म करता हूं व्हेन आई फाइंड सम सॉर्ट ऑफ रिटेल कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस, तीन चार कैंडल भी ऊपर गई, नीचे आई, वापस ऊपर जाने लगी, नहीं ब्रेक कर पा रही है एक सर्टेन लेवल को, नीचे आई। सो विद दो सम सेट ऑफ कैंडल्स आई विल अज्यूम दैट द प्राइस इज नॉट एबल टू ब्रेक इट एंड आई विल फाइंड माय एआर। दैट इज इट, दैट इज इट, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर ये वीसी पे सप्लाई वाली भी बताऊंगा, डिमांड वाली बताऊंगा, बैलेंस वीसी भी बताऊंगा, प्रोग्रेशन वीसी भी बताऊंगा, बट फिलहाल इतनी सी बात करते हैं। अज्यूमिंग ये आंख बंद करके आपने सुन लिया होगा। ओम प्रकाश जी ड्रॉप बेस ऑफ देखो मैंने दो चीजें मार्क कर रखी, मैंने ये ओडी मार्क किया है, ड्रॉप आया, इसको मैंने थोड़ा सा कंसोलिडेशन ऐसा समझाया, मैं चार्ट पे आपको बेटर समझ आ जाएगा, थोड़ा सा वेट हुआ प्राइस का एंड इट ड्रॉप्ड अगेन। जो रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, जो एसएनडी के कॉन्सेप्ट है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर प्राइस कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉप आउट, तो सिर्फ ये ड्रॉइंग्स में आपको समझ जाएगा, चार्ट में और क्लियर हो जाएगा। सो व्हेन आई एम सेइंग दिस आई एम मीनिंग ड्रॉप बेस ड्रॉप, व्हेन आई एम सेइंग दिस इट्स मीनिंग एज डायरेक्ट फॉल, दैट इज इट। यहाँ है सोच रहा हूँ वीसीपी का, यहाँ है सोच रहा हूँ बाइक ऑफ का, इतनी सी बात है। और एक टिप दे देता हूं, इंडियन मार्केट में वाइक ऑफ काम करना है, सबसे सुंदर टाइम फ्रेम है 1H, मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम फ्रेम इज 1H टू फाइंड वाइक ऑफ, टू फाइंड वीसीपी एंड ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। एंड मंडी, 1H एंड मंडी मिल जाएगा, 2H पे भी, 4H पे भी, 30 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 15 सेकेंड, सब पे मिलेगा, बट सबसे ब्यूटीफुल बेहतरीन दो ये टाइम फ्रेम्स है, इफ इट इज 1H और 1 डे, ठीक है। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अभी तक जो बताया वो कॉमन नॉलेज है, दुनिया में हर एक को पता है, मिस्टर रिचर्ड वाइकॉफ जी हमें बता करके गए थे, वो तो चले भी गए, ठीक है। सो यूजुअली प्रैक्टिस के लिए भी आप जो इसके पीछे 100 चार्ट का काम करेंगे, अगर करेंगे तो 100 चार्ट का काम, तो आप 1H पे या 1D पे ही करेंगे। जेन्युइनली सीखना है, जेन्युइनली चार्ट बैक टेस्टिंग करनी है, तो इन दो टाइम फ्रेम पे ही करना, दिमाग इतना सेट हो जाएगा कि इन दो टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड ढूंढोगे। और अगर मैं बात एसएमसी से जब चालू किया था तब से कहना चालू कर रहा हूँ, इसकी इतनी तारीफ कर रहा हूं, अगर डेरिवेटिव्स को 2 दिन 3 दिन 5 दिन होल्ड करना सीख गए तो यू कैन नॉट इमेजिन, भूल जाओगे इंट्राडे करना, भूल जाओगे इंट्राडे करना, डेली बैंक निफ्टी को पकड़ना। अगर 2 दिन इस वीसीपी को होल्ड कर लिया, अगर वाइकॉफ स्कीमेटिक समझ ली, you will make tremendous amount of money with HTF, with sitting idle and doing nothing else onto your system, and that is the goal। आ जाते हैं चार्ट्स पे। किस किस का, मतलब नॉर्थ इंडिया वालों के मौसम अच्छा हो रहा है। पीपल अराउंड जयपुर मस्ट बी नोइंग। विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए।
To the point, correct. If one can see Wyckoff on HU, then just enjoy the prof. Yes. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलिए शुरू करते हैं. वन डे और वन एच, दो ही बातें करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे. समझ जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को तो बड़ी खुशी होने लगेगी आपको ये जानने में. अरे वाह, ये ड्राइंग्स बनानी नहीं चाहिए थी यार. पहली चीज, आई एम हैविंग अ ड्रॉप. ठीक है, कुछ रिट्रेसमेंट, अ ड्रॉप अगेन, अनसन्स ऑफ रिट्रेसमेंट. अगर वीसीपी टाइप की चीजें ढूंढनी है तो अगर कुछ ऐसा मिलने लगे आपको जिंदगी में आगे कभी, तो खुश हो जाना कि कुछ ना कुछ वीसीपी ढूंढ सकता हूं मैं. नॉट नेसेसरी और मेनी टाइम्स नॉट एनगल्फिंग, एनगल्फ नहीं करेगा सॉर्ट ऑफ इनसाइड कैंडल वाला फॉर्मेशन, बट पावरफुल डाउन मूव, पावरफुल अप मूव, दिमाग चलना चाहिए वीसीपी की तरफ. ठीक है, ऑल ऑफ दिस मेक सेंस. अगर I can do this, if I can find this as my first arc, I can find this as my second arc. So far तीसरा आर्क अभी नहीं बना है. ना तो अज्यूम करना है ना कुछ, सिर्फ शांति से बैठे रहना है कि लेट समथिंग हैपन, लेट समथिंग हैपन. और अच्छी बात यह है कि फेलियर के चांसेस खत्म हो जाते हैं यहां पर, क्योंकि अगर मैं इसको मान भी लूं अपना तीसरा कर, my entry setups will only gonna work on breakout and retest. And the best part about all of this is, अभी तक जो पार्ट मैं आज आपको बताऊंगा ये आगे चल के स्विंग्स और पोजीशन में कन्वर्ट तो होगा ही होगा, बट दिस गिव्स यू सो ब्यूटीफुल लेवल्स कि जितने भी लोगों का वो था ना कि सर स्टॉक स्क्रीनर, NR7, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन, वो पोर्शन भी खत्म हो जाएगा. क्योंकि मुझे पता है कि कल मैं अदानी ENT को ट्रेड करूंगा. आई डोंट नो इट इज गोइंग अप डाउन, वो एसएमसी मुझे बता देगा, बट इट इज एट अ गुड प्लेस. दिस इज व्हाट आई नो. एवरीथिंग मेक्स सेंस एट अ पीओआई. इफ इट इज एट अ गुड हॉरिजॉन्टल लेवल, नो. किसने कल मुझे ब्रेकआउट दिया है, इस रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आके खत्म हुआ है. मुझे फॉर्मेशन वीसीपी तरीके का दिख रहा है. मेरी नॉलेज सिर्फ इतना कहती है कि ये स्टॉक कल मेरे लिए ट्रेडेबल है. उसको पटक के वॉच लिस्ट में डाल दिया. Now tomorrow what may happen but not happen, that all of that knowledge will come from 5 minutes 15 minutes time frame, जो हम सब जानते समझते हैं. बट मुझे पता है कुछ ना कुछ तो बढ़िया होना है कल. कुछ ना कुछ तो अच्छा कल होना चाहिए. ठीक है, कमिंग बैक टू मैच. सॉरी, हम शायद वन डे पे थे अदानी ENT. ऑल ऑफ दिस मेक सेंस. ऑल ऑफ दिस only makes sense if all of these reactions I'm getting has to come from some sort of consolidations. Has to come from some sort of consolidation from the previous past history. और एक भाषा जो मुझे पसंद नहीं है बट यूज करूंगा आज, आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा. Some sort of strategy I'll tell you. If anyway this has to happen on some sort of consolidation, breakout, retest, coming back once again. आगे बढ़ते हैं. The more charts you'll see, the more clean the things will be. When it is Wyckoff, when it is VCP, how to connect the dots between the two. Adani Port. अपोलो हॉस्पिटल, इसमें मैंने कुछ मार्क किया था आई गेस. जस्ट आई हैव टू चेंज माय माउस यार, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है.
टिंग टिंग बेटर 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 बेटर। एक पंगा हो गया है कि लाइट चली गई है, उसमें रिकॉर्डिंग ब्रेक ना हो, एल्स एवरीथिंग इज गुड।